Namaskar. Today we'll take on a very important chapter, that is geomorphic process. The name itself is reflecting what geomorphic process is there. And the first question raised in this question is why Earth is uneven. आप लोग को different physical features कौन कौन से देखते हैं Earth पे, और Earth पे ऐसे uneven features कैसे देखते हैं? Different type of landscapes you can come across, like somewhere it's a mountain, somewhere rivers. What are the reasons for this? This is due to some internal forces, due to some external forces. And every time you find the earth changes its surface, and this balance has been also created by earth itself, and gradation is also responsible for this uneven surface of earth. Gradation का मतलब होता है आपका slope कैसा है, उसके हिसाब से भी आपका earth का formation होता है. तो we'll take on first definition of this chapter, that is geomorphic process. हम लोग इसमें देखेंगे if you have to define this geomorphic process, there are some forces which are responsible for bringing unevenness on earth. There are two types of forces which are responsible for it. One is called endogenic forces and other is called exogenic forces. What this endogenic stands for? Endogenic stands for internal forces. जो forces internal से लगते हैं, जैसे आपका volcano का eruption होता है, that's endogenic forces. Earthquakes, that can be the part of endogenic forces. Then exogenic forces outside the forces which are playing very important role. We have so many agents of weathering which are very important for exogenic forces. So they put a lot of stress and a lot of chemical activities goes on Earth. And that brings a lot of changes in configuration of earth. आपके टेक्सचर को बदल देते हैं सब फोर्सेस, दोनों फोर्सेस मिलकर आपको बहुत सारा अनइवननेस लेकर आते हैं अर्थ में. तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थ मूवमेंट व्हिच विल टेक ऑन इन वन बाय वन. आपकी अर्थ की कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं जिसके कारण ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस आपका एक्टिव होता है. वन इज कॉल्ड एंडोगेमी एंड वन इज कॉल्ड एक्सोगेमी. व्हाट एंडोगेमी स्टैंड्स फॉर? कोई भी सडन फोर्स के कारण आपका चीज का क्रिएट होना, लाइक earthquakes are responsible for bringing a lot of change. If you take example of Nepal and all other places which are very earthquake prone zone, we find different type of features has been created in that. Even Himalayas are being created by this endogamic process. Then volcanoes, when volcano eruptions take place, lot of new features have been made in that area. Then landslides are very common in those areas which are hilly. आपको यहाँ पे भी sudden forces were created, that is also part of एंडोगेमी. तो एंडोगेमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स बोलते हैं इसको डायस्ट्रॉफिक फोर्स भी बोलते हैं. व्हाट इज दिस डायस्ट्रॉफिक फोर्स मींस? योर माउंटेन्स बिल्डिंग, आपके माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है इसमें, और आपका हिमालयस का फॉर्मेशन भी ड्यू टू एंडोगेमिक प्रोसेस के कारण हुआ है. देन वी हैव एक्सोगेमी. एक्सोगेमी नेम इटसेल्फ इज रिस्पांसिबल आउटसाइड एजेंट्स. Like we are talking about endogenic forces, we are talking about exogenic forces. Endogenic outside, exogenic interior. So exogamy is also part of an outside. Here a lot of agents are playing very important role, like so many erosional agents are there, so many, and this erosional agents play a deposition role. ये एक तरफ तो तोड़फोड़ करते हैं, एक तरफ डिपॉजिट करते हैं. अब ऐसे कौन कौन से आपको मेन वेदरिंग एजेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपके एक्सोगेमी के लिए? वन कैन बी रिवर. इफ यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स हैव बीन मेड ऑन रिवर. We come across the U-shaped valley, we come across the V-shaped valley. A lot of valleys have been created by river. A lot of different features have been created by this erosion and deposition phase. Then the wind also plays an important role, especially in those areas where desert conditions are there or semi-arid conditions are there. Wind play a very important role for erosional also and deposition also. आपको बहुत डिफरेंट टाइप के फीचर्स देखने को मिलता है. ऐसे सी में भी चले जाएंगे तो वाटर बॉडी में जो ओशन की वेव्स होती है, दे आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. So they also act as a erosional actor also, they deposit the things also. Same way in areas where the climate is very harsh, climate बहुत cold होता है, वहाँ पे आपका ग्लेशियर का एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा होता है. I told you last chapter there is a word called tillet. Tillet is those sediments which are brought by glacier. तो ग्लेशियर होता क्या है? नदी और ग्लेशियर में फर्क क्या होता है? River is a fast moving thing and glacier is a very slow moving movement of ice. That's called glacier. So we will take on one by one this endogenic process and exogenic forces. Endogenic forces are those forces when energy is generated from the earth. आपके inside में से, आपकी earth में से आपकी energy create होती है. तो it can be depend on distribution of minerals and elements which are responsible for this endogenic process. One can be radioactive materials, it can be uranium, it can be thorium, it can be a lot of objects which are responsible for creating endogenic process in it. Then rotational force, as you know, earth is rotating on its orbit. हम लोगों का रोटेशन होता रहता है, इसके कारण दिन और रात होता है, इसके कारण भी आपकी एंडोजेनिक फोर्सेस कैन बी क्रिएटेड. देन वी हैव अ टाइडल फ्रिक्शन. टाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स. समटाइम्स देयर इज अ हाई टाइड, समटाइम्स देयर आर लो टाइड्स. दिस इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून, और ये आपके एंडोजेनिक फोर्सेस का ही पार्ट होता है. देन वी हैव पिरामिडल हीट. पिरामिडल हीट होती है जब भी कोई हीट का
first stage, that is called pyramidal. Pyramidal itself is starting from. So that heat is created from interior of the earth. That is called pyramidal heat. Right? Then we have crustal thickness. आपकी crust का thickness कैसा है? क्योंकि outermost layer of the earth is called crust. So आपका thickness उसमें कैसा है? That is also dependent on this endogenic process. So this all things are endogenic. Then we have exogenic forces. When energy is mainly derived from atmosphere. A lot of energy has been derived from atmosphere. Atmosphere playing very important role for us, and it acts as blanket. Right, so we have so many sources from where this exogenic process got energy. From where they get? Sun is the very important factor in. Sun सबसे important है उसमें. और आपके tectonic factors हैं क्योंकि I told you Earth is not made up of something else. It is mainly made up of tectonic plates. Tectonic is a Latin word which has been meaning shaking. Always it shakes. आपकी plates की movement कभी भी stable नहीं रहती. Lot of movements are created by these tectonic factors. Then we have a gravitational force. तो आपकी gravity बहुत important role play करती है किसी object को ऊपर से नीचे गिराने में. And gravity is a very important factor for exogenic process. Then there is a word which has been commonly used in this chapter is disotorism. That means disotorism means to elevate something. किसी चीज को formation करना. आपके जो भी agents of weathering है, they used to bring sediments and then they raise the object. That is called disotorism. That is a Latin word which has been taken. And इसमें आपके दो parts होते हैं. One is called orogenic and one is called aprogenic. तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस. तो आपका जो हिमालयाज और डिफरेंट माउंटेन्स हैव बीन मेड, दैट इज मेड ड्यू टू दिस ऑर्गेनिक फीचर. देन वी हैव एप्रोजेनिक. एप्रोजेनिक को अपलिफ्टिंग करना, लेकिन इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ माउंटेन व्हिच हैज बीन रेज्ड, बट इट इज जस्ट अपलिफ्टिंग ऑफ अ सरफेस. दैट इज कॉल्ड एप्रोजेनिक. देन देयर इज अ वेरी कॉमन वर्ड व्हिच वी यूज, दैट इज वोल्केनिज्म. द नेम इटसेल्फ इज रिलेटिंग कि वोल्केनिज्म का मतलब क्या होता होगा. कुछ ऐसे फिजिकल फीचर जो वोल्केनो के कारण क्रिएट होते हैं. तो लॉट ऑफ मोल्टन मैग्मा हैज बीन रेज्ड फ्रॉम द अर्थ. तो उसके कारण आपके डिफरेंट फीचर्स का फॉर्मेशन होता है सरफेस पे. वी कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर थ्रू विद द हेल्प ऑफ वोल्केनो. देन विल टेक ऑन डेनुडेशन प्रोसेस एंड देयर ड्राइविंग फोर्सेस. व्हाट आर दिस डेनुडेशन प्रोसेस एंड उनके ड्राइविंग फोर्सेस कौन से होते हैं. तो मेनली वी हैव थ्री मेन प्रोसेस व्हिच आर पार्ट ऑफ अ डेनुडेशन प्रोसेस. तोड़ फोड़ का हिस्सा कौन होते हैं, इरोजन का हिस्सा कौन होता है, डिपॉजिट का हिस्सा कौन से होता है. तो फर्स्ट इज वेदरिंग, सेकंड वन इज मास मूवमेंट, थर्ड वन इज इरोजन और ट्रांसफॉर्मेशन. कौन सी चीज टूटे फूटेगी और उसके बाद कोई नई चीज का फॉर्मेशन होगा, वो कौन सा है. तो इनको एनर्जी कौन सी मिलती है, कौन से इनके ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस डेनुडेशन प्रोसेस. तो इफ यू टेक फर्स्ट वन, दैट इज वेदरिंग. वेदरिंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल ऑन ग्रेविटी. आपके किस हाइट पे कौन सी चीज पड़ी हुई है, ग्रेविटी कैसी है उस ऑब्जेक्ट की, दैट डिपेंड्स ऑन दैट. तो मॉलिक्यूलर स्ट्रेस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके मॉलिक्यूल्स कैसे बाइंड अप हुए हैं आपके उस ऑब्जेक्ट में, दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग. Then mass movement का नाम itself is reflecting anything which is in mass, very large in number. So that is mass movement. The gravity plays a very important. We come across avalanches, we come across landslides. That will take on the last part of this chapter. Then third part is erosion. Erosion itself means there are two parts in it. There is two components. One is weathering of any object. किसी चीज का तोड़फोड़ होना और उसके बाद डिपॉजिट होना. तो सबसे ज्यादा प्रोसेस में है काइनेटिक एनर्जी. सो वी हैव टू टाइप ऑफ एनर्जी, यू ऑलरेडी नो. वन इज पोटेंशियल एंड वन इज काइनेटिक. देन वी हैव वेदरिंग. वेदरिंग इज बेसिकली व्हाट वेदरिंग स्टैंड्स फॉर. इसका मतलब होता है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होना, किसी चीज का तोड़फोड़ होना, कोई चीज डिसइंटीग्रेट हो जाना, आपके टुकड़ों में बढ़ जाना. कोई भी चीज आज जो बहुत बड़ी है कल वो टूट जाएगी. बट इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स. व्हेनेवर वी टॉकिंग इन ज्योग्राफी वी हैव नेवर टेक फॉर 1 year 2 years, we take 1000 years into consideration. तो आपका मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है, केमिकल डिकम्पोजिशन भी हो सकता है. तो रॉक्स का इन मैकेनिकल फोर्सेस के कारण तोड़फोड़ जो होती है, दैट्स कॉल्ड वेदरिंग. सो मेनली वी हैव सो मेनी पार्ट्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वेदरिंग. वी हैव केमिकल वेदरिंग, वी हैव फिजिकल वेदरिंग. तो हम लोग केमिकल वेदरिंग को देखेंगे अब. तो मेनली इफ यू सी केमिकल वेदरिंग में आप लोगों के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. वन इज सोल्यूशन. इसमें वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. व्हेन वाटर इज डिसॉल्व्ड विद दैट कंटेंट and then they disintegrate that part. तो आपका सल्फाइड का एग्जांपल आता है, निट्रेट्स का एग्जांपल आता है. Then we have carbonation. Name itself is suggesting that carbon is playing a very important role in it. Reaction of carbonate, that is very very important. तो बाइकार्बोनेट और कार्बन की मदद से मिनरल्स का तोड़फोड़ होता है. Then we have hydration. With the help of water, water plays a very important role. Sometimes it freezes, sometimes it melts. तो ये जब मेल्टिंग और फ्रीजिंग कंटिन्यूसली होती है तो दिस एक्शन कम्स इनटू एक्शन. दैट्स कॉल्ड हाइड्रेशन. देन ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. आपकी किसी चीज का डिसइंटीग्रेशन होना.
So that is also very very important. Then we have physical weathering. Physical weathering, so many factors are responsible for physical weathering. One is gravitational force, one is expansion force, and one is water cycle. So gravitational force itself is resisting. Gravity plays a very important role for physical weathering. आपका ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, कैसे ग्रेविटी का रूल उसमें आ सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन इट. एक्सपेंशन फोर्स होता है, इसमें वाटर का इंपॉर्टेंट रोल है कि आपका कौन वाटर कब फ्रीज होता है, कब मेल्ट होता है, हीट क्या उसमें एक्टिव रोल प्ले करती है, दैट विल टेक ऑन इवेंट. वाटर साइकिल, आपका वाटर साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है. एज यू नो, सन से आपका एवेपोरेशन होता है ओशंस में, और ओशन से बाद आपके बादल बनते हैं, बादल के बाद बरसात हो जाती है. तो दिस प्रोसेस गोज ऑन. तो वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है अपलोडिंग. तो आपका टॉप मोस्ट लेयर को हटाना, दैट इज कॉल्ड अपलोडिंग. और एक कंटिन्यूस इरोजन होता रहता है. कोई पहाड़ है उसको लगातार उसमें आपका अटैक होता रहता है एजेंट्स ऑफ वेदरिंग के कारण. वन डे इट विल डिसइंटीग्रेट इनटू पार्ट्स, दैट्स कॉल्ड अपलोडिंग. देन वी हैव टेम्परेचर. टेम्परेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर डिसइंटीग्रेट एनी पार्ट. क्योंकि आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स को जो बनाए जाते हैं, दैट वी कीप अ गैप इन बिटवीन. द रीजन इज वेरी क्लियर, ड्यू टू टेम्परेचर, राइट. Especially when there is a temperature is cold, what happens, we squeeze, and when the temperature hikes up, then it expands. So ये expansion contraction के कारण भी चीज का disintegration होता है, that comes under physical weathering. Then we have freezing, thawing and frost wedging. Frost also play a very important role, especially in those areas where cold climate is there. तो आपका freezing होता है और winters में, और जब summers होता है तो summers में melt हो जाता है. तो पानी का लगातार freeze होना और उसके बाद उसका मेल्ट होना, दैट आल्सो पॉसिबल फॉर फिजिकल वेदरिंग. इससे आपका रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है. कंटिन्यूसली दिस प्रोसेस गोज ऑन. ऐसे फ्रॉस्ट के साथ भी होता है कि कुछ एरियाज में फ्रॉस्ट बहुत पड़ती है तो वहाँ पे जमी हुई होती है, उसके बाद वो मेल्ट हो जाती है. तो दिस प्रोसेस गोज ऑन. सॉल्ट वाले एरिया में, स्पेशली जहाँ पे आपके रिवर बॉडीज हैं, वहाँ पे आपको सॉल्ट बहुत मिलता है. तो सॉल्ट में कैरेक्टर होता है कि एक्सपैंड हो जाता है. जब गर्मी पड़ती है तो बहुत एक्सपेंशन हो जाता है, और ड्यू टू वाटर का एंट्री हो जाएगा, and later on it forms into a form of a crystallization. So this all goes on. Physical weathering में सबसे important होता है biological weathering. We have so many rodents, आपके rats हैं, बहुत सारे ऐसे insects हैं which are responsible for causing biological weathering. तो there is this biological weathering, जो borers बना लेते हैं तो आपकी soil loose हो जाती है. That is possible to do this weathering. Significance का weathering का, आपको जो भी मैंने starting में chapter पढ़ाया, but why earth is uneven, so this weathering is a playing very important role. If you take example of Aravallis, Aravallis are quite older than Himalayas, but Aravallis has been reduced. Why? Because of weathering. तो आज अगर मौसम में बदलाव आ रहा है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो आपका मानसून कभी भी राजस्थान में एक्टिव नहीं होता था. बट वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? बिकॉज अरावली हैज बीन रिड्यूस्ड, बट नॉट हिमालयस. हिमालयस आर स्टिल ग्रोइंग. तो अभी भी आपका उसमें डिपोजिशन होता जा रहा है, एंड स्टिल इट इज ग्रोइंग. देयरफॉर हिमालयस आर कॉल्ड यंग माउंटेन्स. देन वी हैव अ मास मूवमेंट. मास मूवमेंट का होता है कि आपका मास का ट्रांसफर ऑफ मास ऑफ रॉक. कोई भी बहुत सारा मास किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे रॉक्स का, वो डाउन स्लोप में गिरने लग जाता है. तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट. इट कैन बी इन क्रीप फॉर्म. कुछ मास मूवमेंट बहुत स्लो होते हैं, कुछ का फ्लो होता है, कुछ स्लाइड करके जाते हैं, कुछ बहुत जल्दी से गिरते हैं. दैट्स अ फॉल, राइट. क्रीपिंग लाइक अ चाइल्ड, व्हेन अवर चाइल्ड बॉर्न्स, इट यूज्ड टू क्रीप. देन इट बिकम लिटिल बिट ओल्डर, इट फ्लोज, वो मूवमेंट करने लग जाता है. और जब आप मैच्योर होते हैं तो आप स्लाइडिंग करने लग जाते हैं, और कोई बहुत मैच्योर होकर आप फॉलिंग सिचुएशन आ जाती है. सो दैट कम्स अंडर. बट व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? ह्यूमिड कंडीशन कैन बी देयर एंड स्लोप्स कैन बी देयर. आपकी कंडीशन अगर बहुत ह्यूमिड है तो स्लिपरी हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, तो स्लाइडिंग करना आसान हो जाता है. आपकी कोई भी मास मूवमेंट होना बहुत आसान हो जाता है. तो वी कम अक्रॉस सो मेनी इरोजन वर्क, स्पेशली ऑन माउंटेन्स. तो आपको वहाँ पे स्टीप स्लोप्स का देखिएगा. हैवी रेन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मास मूवमेंट. देन लूज सॉइल हो जाती है. अगर सॉइल लूज है तो आपकी मास मूवमेंट बहुत एक्टिवेट होगी. देन वी हैव अर्थ फ्लोज. ये सारे मास मूवमेंट में ही है. तो आपका अवलांचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन हिली एरियाज जहाँ पे स्नो बहुत रहती है. वहाँ पे आपको डेब्रिज अवलांचेस देखने को मिलते हैं. तो आपके मैक्सिमम लोगों की डेथ जो होती है अवलांचेस के थ्रू होती है. तो मास मूवमेंट होती है स्नो की बहुत ज़्यादा उस एरिया में. दैट्स कॉल्ड डेब्रिज अवलांचेस. लैंडस्लाइड्स आर वेरी कॉमन इन हिली एरियाज. तो यहाँ पे बड़े बड़ी रॉक्स जो होती हैं उसमें वेदरिंग होती है, वो टूट हो जाती है, वो स्लिपरी हो जाती है. तो बहुत बड़े बड़े रॉक के बोल्डर्स नीचे गिरने लग जाते हैं. दैट इज पार्ट ऑफ ए लैंडस्लाइड्स. एंड देन वी हैव डेब्रिज स्लाइड्स. कुछ छोटी मोटी चीज़ों का, छोटी छोटी रॉक्स का गिरना नीचे, दैट्स कॉल्ड डेब्रिज स्लाइड. रॉक फॉल, बिग बिग रॉक्स के बोल्डर जो होते हैं वो नीचे गिरने लग जाते हैं, दैट कम्स अंडर
देन इरोजन एंड डिपोजिशन, अगर कोई चीज बनेगी तो उसका वो टूटेगी भी, और टूटेगी भी तो उसका डिपोजिशन भी कहीं होगा। तो कौन से रोल प्ले करेंगे इसमें? रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, इसमें विंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और इसमें डिफरेंट एजेंट्स बहुत रोल प्ले करेंगे। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज सॉइल। व्हाट सॉइल मीन्स? topmost layer of the earth is called soil. So there are different features how soil is mainly formed. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि soil का formation कैसे होता है। First one is parent material, which is very responsible for formation of soil. आपकी उस एरिया में कौन सी रॉक्स हैं? अगर वो इग्नियस रॉक है तो उसका बेस भी इग्नियस रॉक होगा, क्योंकि पेरेंट मटेरियल इज इग्नियस। देन वी हैव टोपोग्राफी। टोपोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके फिजिकल फीचर्स कैसे हैं उस एरिया में, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So then we have a climate. Climate plays a very important role for that.